and I am again back with 12th chemistry. 12th chemistry. Okay. So this is we are studying electrochemistry. Electrochemistry. I think this is video lecture 8th on the chapter electrochemistry. ठीक है. So last time what we have studied, that is Cauchy's law. Cauchy's law. ठीक है. Cauchy's law. We have studied Cauchy's law. देखो Cauchy's law क्या बोलता है कि देखो first you see that this is what is the difference between this and this. What is the difference between this and this? Okay, this is chi m. This is chi node m. Chi means conductivity, ठीक है. M means molar, so this represents molar conductivity. This represents molar conductivity. Okay, conductivity, molar conductivity. This represents molar conductivity. This also represents molar conductivity, but at infinite dilution. This also represents molar conductivity. This also represents molar conductivity, but at infinite dilution. This also represents molar conductivity, but at infinite dilution. Okay, infinite dilution में मतलब कोई इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो अपनी सारी आयंस दे देती है. जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो जल्दी से अपनी आयंस नहीं देती, उसको वो ज्यादा डाइल्यूट करना पड़ता है, ठीक है. सो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, नॉड मींस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है. कई बुक्स में इसके लिए ये इन्फिनिटी का साइन यूज हुआ है, तो डोंट गेट कंफ्यूज, दिस इज सेम. सो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इवन अ weak electrolyte give all its ions. So Cauchy's law is about molar conductance at infinite dilution. It does not deal with other concentrations. Cauchy's law deals with molar conductivity at infinite dilution. Okay, तो देखो Cauchy's law ने क्या बोला था. अगर तुमने अच्छे से पिछला लेक्चर देखा है और समझ आया तो ठीक है, नहीं आया तो ये देख लो. Cauchy's law ने बोला जैसे कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है CH3COOH, ठीक है. Conductivity of a weak electrolyte at infinite dilution depend upon its ions. इसकी ions के ऊपर डिपेंड करती है. किसके ऊपर डिपेंड करती है? इसके ions के ऊपर. कैटाइन की कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस एनाइन की कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस कैटाइन की कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. दोनों को प्लस करोगे तो उसकी कंडक्टिविटी आ जाएगी. गेटिंग द पॉइंट. उसी तरीके से जैसे कोई स्ट्रॉन्ग की भी अगर जब वीक इलेक्ट्रोलाइट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इज गिविंग ऑल इट्स आयंस, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विल ऑटोमेटिकली गिव इट्स ओन आयंस. इट कैन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैन इवन गिव ऑल इट्स आयंस इवन एट सिंपल डाइल्यूशन, नॉट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, बट इनफाइनाइट तो देगी. जैसे आ गया NaCl. तो कंडक्टिविटी ऑफ NaCl इन इनफाइनाइट डाइल्यूशन डिपेंड अपॉन इट्स आयंस इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स आयंस, सम ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ इट्स आयंस. तो इसकी आयंस कौन सी है? एक कैटाइन आ गई और एक एनाइन आ गई. So this is Cauchy's law that electrolyte conductivity at infinite dilution depends on the conductivity of its cation and anion at infinite dilution. दोनों को प्लस कर दोगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है. अब मान लो यहाँ पे अगर एनाइन होती है MgCl2, ठीक है, तो क्या बनता? तो हमें लेना पड़ता Mg2 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव. बट Cl है कितना? 2 है, तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ता. Cl 2 है इसलिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ता, ठीक है. यहाँ पे देखो क्लोरीन एक था, हमने एक लगाते रहे. अब यहाँ पे क्लोरीन 2 है तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा. ओके, दिस इज आल्सो Cauchy's law. So this was Cauchy's law. Now we will study today the applications of Cauchy's law. We will be studying the applications of Cauchy's law. ये इसकी एप्लीकेशंस कैसी है, ठीक है. So we will study today the applications of Cauchy's law. इसकी 3 एप्लीकेशंस है. Two are very important from which the numerical comes. Today I will be discussing only one type of and one application and its numericals. Okay, so applications of Cauchy's law. Application of Cauchy's law. Application of Cauchy's law. ठीक है. तो फर्स्ट एप्लीकेशन आ गई टू फाइंड द कंडक्टिविटी ऑफ weak electrolyte at infinite dilution. weak electrolyte की कंडक्टिविटी का अपने को पता नहीं लगता है, but we can calculate the conductivity of weak electrolyte at infinite dilution. कैसे? कौन सा ट्रिक लगाएगा ये, ठीक है. उसके लिए कंसेप्ट है जो आपको समझना जरूरी है. देखो जैसे ये है
According to Kohler's law, conductivity will be equal to Na positive plus Cl negative. Now change the electrolyte KCl. I have changed the electrolyte. I have changed the electrolyte. Now KCl. So again, okay. Now see here, molar conductivity at infinite dilution is of chloride ion. Here also molar conductivity of chloride ion at infinite dilution. Okay. So ये दोनों values same होगी. We have obtained the chloride ion from different electrolyte here, and we have obtained the chloride ion from different electrolyte. But क्या वैल्यू किसी एनाइन की या कैटाइन की इज डिपेंडेंट अपॉन द इलेक्ट्रोलाइट और इंडिपेंडेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट? ये अच्छा इसकी आइन है तो अलग वैल्यू आएगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन की, और इसकी वैल्यू है तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी अलग आएगी. कैसा होता है? Does the conductivity of anion or cation at infinite dilution depends upon the electrolyte or not? Answer is no. It does not depend upon the electrolyte. चाहे KCl से obtain हुआ, चाहे NaCl obtain हुआ, चाहे CaCl2 से obtain हुआ, the conductivity of chloride ion at infinite dilution will be same. It does not depend upon the electrolyte. This thing is the main thing. Electrolyte पे depend नहीं करती है. ठीक है. तो देखो मान लो जैसे हमें इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड नहीं करती. सो सपोज हमें अगर करना है इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड नहीं करती है, तो सपोज हमें जैसे कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग, जैसे HCl है, इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसकी कंडक्टिविटी पता लग जाती है. ठीक है. इनफाइनाइट डाइल्यूशन से पहले पता लग जाता है इसका. इनफाइनाइट डाइल्यूशन में क्यों लेते हैं? ताकि पूरी की पूरी आयंस दे दे. तो ये तो जल्दी दे देते हैं तो उनकी कंडक्टिविटी जल्दी पता लग जाती है. HCl में H की कंडक्टिविटी विच इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसकी जल्दी पता लग जाएगी, इसकी पता लग जाएगी. ठीक है. सिमिलरली NaCl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो Na की कंडक्टिविटी और Cl की कंडक्टिविटी अपने को एकदम से पता लग जाएगी. ठीक है. सिमिलरली CH3COONA, दिस इज सोडियम एसीटेट, दिस इज आल्सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो उसमें कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी? ठीक है. सो कंडक्टिविटी ऑफ दिस व्हाट यू से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड्स अपॉन द कंडक्टिविटी ऑफ इट्स कैटायन प्लस कंडक्टिविटी ऑफ इट्स एनायन. तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी हम जल्दी निकाल लेते हैं क्योंकि जल्दी से सारी आयंस दे देती हैं, तो कंडक्टिविटी अपने को पता लग जाती है. इनफाइनाइट डाइल्यूशन ना भी करे तो भी चलेगा. ठीक है. अब जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी है, जैसे हमने ले लिया CH3COOH, इसकी कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही है? एक इस साइन पे और एक इस साइन पे. इन दोनों आयंस पे डिपेंड कर रही है. ठीक है. इन दोनों आयंस पे डिपेंड कर रही है. गेटिंग द पॉइंट? सो इस साइन की कंडक्टिविटी चाहे यहां है चाहे वहां है, कंडक्टिविटी तो सेम रहेगी. कंडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रोलाइट. एसिटेट आयन चाहे हमें सोडियम एसीटेट से मिले चाहे एसिटिक एसिड से मिले, इन दोनों की कंडक्टिविटी एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन सेम होगी. तो इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है क्योंकि जल्दी डिसोसिएट नहीं होती, तो इसकी वैल्यू हम यहां से उठा लेंगे. इस इलेक्ट्रोलाइट से वैल्यू तो सेम रहेगी, डज नॉट डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रोलाइट, यहां डाल देंगे. और H पॉजिटिव कहां है? H पॉजिटिव की वैल्यू HCl यहां से उठा लेंगे क्योंकि तो स्ट्रॉन्ग है, इनफाइनाइट से पहले देता डाइल्यूशन. स्ट्रॉन्ग की कंडक्टिविटी पता लग जाती है, वीक की पता लग जाती है. ठीक है. तो इसकी वैल्यू उठा के हम यहां दे देंगे. ठीक है. कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन चाहे HCl से H पॉजिटिव आयन मिली हो चाहे CH3OH से मिली हो, डज नॉट डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रोलाइट. तो इसकी वैल्यू यहां डाल देंगे, इसकी वैल्यू यहां डाल देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस आ जाएगी और कंडक्टिविटी आ जाएगी. गेटिंग द पॉइंट? सो दिस इज वेरी सिंपल. इसकी कंडक्टिविटी इस आयन पे डिपेंड करती है. ये आयन चाहे हमें यहां से मिले चाहे यहां से मिले, कंडक्टिविटी सेम है, डज नॉट डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रोलाइट. यहां से इसकी वैल्यू यहां डाल देंगे और इसकी वैल्यू यहां से वहां डाल देंगे. ठीक है. सो वी विल गेट द कनेक्टिविटी. ठीक है. दोनों को प्लस कर देंगे, वी विल गेट द कनेक्टिविटी. ओके. इसका एक न्यूमेरिकल कराता हूं. ठीक है. उससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा. तो ये बात है. स्ट्रॉन्ग आयन की अपने को कंडक्टिविटी पता होती है. ठीक है. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की आयंस की कंडक्टिविटी पता है, जल्दी से आयंस दे देती है तो कंडक्टिविटी आ जाती है, डाइल्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ती ज्यादा. तो उसकी कंडक्टिविटी अपने को पता लगी. तो अब एसिटेट आयन चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से मिले चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट से मिले, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इसकी कंडक्टिविटी सेम होगी. तो अगर यहां पे इसकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन में कंडक्टिविटी 10 आ रही है तो यहां भी 10 आनी चाहिए. तो यहां पे 10 कर देंगे, इसकी यहां पे 50 आ रही है तो हमें 50 आनी चाहिए. तो इसकी 60 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी इसकी यूनिट है उसमें आनी चाहिए. गेटिंग द पॉइंट? सो ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी का पता लगा के हम उसकी आयन की कंडक्टिविटी का पता लगा देंगे. और आयन की कंडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रोलाइट, चाहे किसी से ली है तो वैल्यू भर के इनफाइनाइट डाइल्यूशन की हम चुपचाप निकाल लेंगे.
गेटिंग इट? तो इसमें देखो बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है, एवरी टाइम मेनी टाइम दे हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन, many a times they have asked me this question. इसको ठीक है, इसका क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे तुम्हें काफी हेल्प मिल जाएगी इसको समझने की, व्हाट इज दिस द कांसेप्ट बिहाइंड ऑल दिस। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन है, मैं तुम्हें क्वेश्चन बताता हूं इवेंट। देखो इसमें क्वेश्चन है, ये बड़ी बार पेपर में आ चुका है, NaCl की कंडक्टिविटी एट इनफिनिट डाइल्यूशन इन्होंने बताई, चार चीजें बताई, NaCl की बताई है, साथ में बताई है इन्होंने HCl की, साथ में CH3COON की, तीन की बताई उन्होंने कंडक्टिविटी एट इनफिनिट डाइल्यूशन। तीनों की देखो कितनी कितनी बताई है, इसकी बताई है 126 425.9 और इसकी बताई है 91। ठीक है, 126.4 यूनिट है इसका सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल। अब इनकी कंडक्टिविटी के बेस पे वी हैव टू, दीज आर ऑल स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स, वी हैव टू फाइंड द कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH। हमें इसकी कंडक्टिविटी एट इनफिनिट डाइल्यूशन निकालनी है। ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ दीज थ्री वी नीड टू फाइंड द कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड, दिस वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफिनिट डाइल्यूशन। ठीक है, तो निकाल सकते हैं, देखो कैसे। अब मेरी बात सुनो, जैसे ये देखो, तुम्हें मैं इसका शॉर्टकट दिखाता हूं कि इसमें अगर तुम इन दोनों को प्लस कर दो, इसको मैं बता देता हूं 2, इसको मैंने 2 दे दी 2, इसको दे दी 3 और इसको नंबर दे दिया 1। ठीक है, 2 + 3 कर दो -1 कर दो, 2 + 3 कर दो -1 कर दो, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करोगे। यही क्वेश्चन आता है बार बार, और ये जो आइंस है ये भी सेम ही रहती है। ठीक है, NaCl HCl ये सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें तुमने क्या करना है, 2 + 3 -1। ठीक है, कुछ नहीं, फार्मूला तुम्हें बड़ा पता लग गया, मैंने ऐसे क्यों किया। 2 + 3 कर दो, 2 क्या है HCl, तो HCl से कौन से आयन आएंगी, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, 2 से ही आ गई। ठीक है, 2 हो गया, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, 3 क्या है CH3CO नेगेटिव, 3 क्या है 3 क्या है 3 है CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, 3 आ गया, ये 2 + 3 आ गए। ठीक है, 2 + 3 आ गया, मैंने इसको आइस में तोड़ दिया। अब माइनस इसमें कर दो 1, माइनस कर दो 1, Na पॉजिटिव माइनस Cl नेगेटिव। ठीक है, Na पॉजिटिव माइनस Cl नेगेटिव। ओके, तो क्या आएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे आ गया आई दे दी इसने, यहाँ पे दे Na पॉजिटिव, यहाँ पे है Na पॉजिटिव, ये 2 + 3 आ गया, ये 2 + 3 आ गया और ये 1 आ गया, -1 आ गया। बस ऐसे करना आपने। देखो क्या होगा, ये तो आप अपने आप समझ सकते हो कि किसको माइनस करने से CH3COH बनता है। अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो CH3COH आएगा प्लस NaCl निकलेगा, तो NaCl से NaCl कट सकता है, तो इन दोनों को प्लस करना जरूरी है, बिकॉज CH3CONA प्लस HCl दोनों को प्लस करके मिलेगा ये प्लस NaCl, तो इसलिए मैंने दोनों को प्लस करा दिया। अब क्या बनेगा, देखो ये प्लस है, ये माइनस से कट गया, ये माइनस है, ये प्लस है, तो 2 + 3 को इससे काटने से अपने पास क्या बचा, ये प्लस ये बचा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये दोनों किसकी कनेक्टिविटी देंगे, इसकी देंगे, इसकी कनेक्टिविटी देंगे ना, इसकी कनेक्टिविटी देंगे, इसकी देंगे, तो इसकी कनेक्टिविटी आ गई। अब करना क्या, इसकी वैल्यू डाल दो। 2 + 3 की वैल्यू कितनी है, 2 + 3 -1, 2 + 3 की वैल्यू कितनी है 425.9, 91.0, 9 आ गया, 6 आ गया, 11 आ गया, 516.9, 2 + 3 की वैल्यू कितनी आ गई 516.9, इसकी वैल्यू आ गई, देखो 91 इसको प्लस कर दी मैंने, आ गया 516.9, 516.9 माइनस 126.4, 126.4, देखो क्या था 126.4, क्या आएगा 5 0 और इसमें से 11 8 1 9 3, 390.5। तो इसको करके क्या आया, इसकी वैल्यू कितनी आई है, 2 + 3 को हमने तो अरिथमेटिकली माइनस कर दिया, वैसे असली कैलकुलेशन में देखो तो माइनस करके वैल्यू क्या आनी चाहिए थी, माइनस करके वैल्यू आनी चाहिए थी 390.5। ठीक है, तो
इसकी कंडक्टिविटी क्या आ गई 390.5 और इसकी यूनिट है सीमन पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. So in this way we have calculated the this molar conductivity of acetic acid this electrolyte at infinite dilution with the help of strong electrolytes. तो हमने कैलकुलेट कर दिया. ऐसे क्वेश्चन आता है उस वैल्यू चेंज करके आता रहता है हर साल. ठीक है, हमने इसको प्लस क्यों किया? क्योंकि इसको प्लस करने से देखो क्या होता है, दोनों को प्लस करने से क्या होता है CH3COONA प्लस HCl प्लस करने से क्या होता CH3COOH प्लस NaCl आता. यह आता तो 1 से माइनस करके कट जाता, अपने आप इसकी वैल्यू इसलिए हमने प्लस किया. ये एस्टिमेट में खुद लगाना पड़ेगा. जनरली यही 4 इलेक्ट्रोलाइट आती हैं, ये 3 स्ट्रॉन्ग 1 वीक, इस हिसाब से क्वेश्चन हो जाएगा. ओके, तो ये इसका क्वेश्चन हो गया. ठीक है, अब इसकी सेकंड और थर्ड एप्लीकेशन वो ज्वाइंट करके क्वेश्चन आता है, वो मैं तुम्हें कल बताऊंगा.